Hello everyone, myself Jalaj Nagpal and I welcome you all to EduTap. So as you know that APFC EOAO notification is out and number of vacancies are quite huge. So there is one very important component in your APFC and EOAO exam, which is accounts, auditing and insurance. Accounts, auditing and insurance is one component in APFC, but in EOAO exam we have only one component, which is accounts. So the common component of accounts is like giving a nightmare kind of thing to many students. So therefore we were receiving many emails, many calls, many messages that सर की अकाउंट्स पे टॉप 5 चैप्टर्स कौन से होंगे, इंश्योरेंस में क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग में क्या पढ़ना है, so on and so forth. So therefore in this particular video, my friend, we are going to discuss important topics of accounts and auditing. In fact, I will also tell you that how you can filter out the data of accounts, which chapters you can skip completely and which chapters you should cover thoroughly. This particular video is also helpful for EOAO students, but do focus on only account section. If you are only focusing on EOAO exam, then you do not have to cover insurance and auditing. अगर आप EOAO के बच्चे हो और आप सिर्फ उसी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो केवल और केवल अकाउंट्स वाले पार्ट तक ही इस वीडियो को देखना, और जो APFC लेवल को टारगेट कर रहे हैं उनको पूरा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस भी देखना होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन राइट नाउ. So before moving ahead, I have this one wonderful gift for you, which is our guidebook for becoming an APFC officer at EPFO. See my friends, we waste endless time on resourcing our data. हम लोग क्या कहीं पूरा विकीपीडिया जैसे पूरे गूगल को हम लोग छान डालते हैं और डिफरेंट डाटा निकालते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह टाइम वेस्ट करते हैं. बट अगर आपको उस टाइम वेस्ट से बचना हो और अगर आपको एक क्वालिटी मटेरियल, एक क्वालिटी value addition चाहिए हो, then this particular guidebook is for you. You can download this particular guidebook by clicking on a link which is given in the description box below. But हम क्यों डाउनलोड करें? See, in this guidebook you will get all the different knowledge points जो भी आपको चाहिए EO, AO या फिर APFC एग्जाम क्लियर करने के लिए. सिलेबस में क्या है, सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मोर इम्पॉर्टेंटली द सैलरी स्ट्रक्चर माय फ्रेंड, वो भी इसके अंदर हमने दे रखा है. अगर आपको सैलरी मोटिवेट करती है तो ये पर्टिकुलर ई बुक आपके लिए है. इसको आपके डेस्क के सामने जो भी स्टडी डेस्क है उस पर प्रिंट करा के इसे रख लीजिए. It is completely free. Download it from the link given in the description box. So now let's move ahead and understand that what are the different topics. But before moving ahead, why we study account? Why should someone study accounts, auditing and insurance in APFC? If you see my friends, in the year 2012 and in the year 2015, if I specifically talk regarding the number of questions, then there were one question in the year 2012 and 3 questions in the year 2015 from accounting, auditing and insurance. Now you will see sir सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे. अब जिस बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ 0.5 से 0.25 से रुका हो उससे पूछो इन 3 क्वेश्चनों की अहमियत. Therefore what I will tell you is that ये जो कंपोनेंट है आपका अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस बिल्कुल टफ नहीं है अगर आप सही रास्ते पे चलो तो. अगर आप सोचो कि मेरे को CA लेवल का पढ़ना है, मेरे को एक दिन में ही मास्टर बनना है, देन वो नहीं हो पाएगा. बट अगर आप सही लेवल पे चलते हो, बेसिक्स पे खेलते हो, देन इट इज मच डूएबल. ओके, जिसमें इंश्योरेंस वाला जो कंपोनेंट है ये हार्डली आप 2 घंटे में खत्म कर सकते हो अगर आपको पहले से भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत लिमिटेड है. अकाउंट्स में मानता हूं कि बहुत बड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए आपको कुछ फिल्टरिंग आउट करना पड़ेगा, तो वो टेक्निक को समझना इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर यू कि व्हाट आर द टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड डू. दैट्स इट. आई एम नॉट डूइंग एनी मोर blah blah thing in this video. I will just tell you what are the top 5 topics in accounts, auditing and insurance. So those who are preparing for EPFO, उनके लिए तो I will say accounts is most important because if I am not wrong 10 to 15 questions directly come from accounts, and those 10 to 15 questions में से आप 50% questions तो hardly 3 seconds में मार्क कर सकते हो. बहुत इजी लेवल आता है. तभी मैं कह रहा हूं अपने को इसमें मास्टर नहीं बनना है, अपने को तूफान लेवल का नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ बेसिक्स को 5-6 बार पढ़ना है ताकि अपने बेसिक्स क्लियर हो जाए और उसी लेवल पे आपका क्वेश्चन भी आएगा. सो नाउ आई मूव अहेड एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट आर डिफरेंट टॉपिक्स विच यू शुड डू. फर्स्ट, एक और छोटी सी चीज कि आपको इस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपना लक टेस्ट नहीं करना है। कई बच्चे अपना तुक्का भी लगा के आएंगे, उन जैसा नहीं बनना है, अपने को दिमाग से खेलना है। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आप लोग, बट प्लीज लक से मत खेलो कि ये क्वेश्चन तुक्के तुक्कों में हो आएंगे, कि मेरे को तो इंश्योरेंस का पता है, मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस लेवल पे मत खेलो। केवल और केवल मैं तो कह रहा हूं कि आप 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लो इस कंपोनेंट के लिए एंड यू आर डन विद। आप एपीएफसी के लिए भी सिक्योर हो जाओगे और ईओ के लिए भी सिक्योर हो जाओगे। नाउ सेकंड लर्निंग इज लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। इजी उनके लिए जिनके पास बेसिक्स है, ठीक है। अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है देन सॉरी टू से थोड़ा टफ हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू अगर आप थोड़ा सा मिनिमम टाइम भी अच्छे से लगाओगे तो यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। सिंपल। नाउ किस ऑर्डर में पढ़ना है? पहले मैं बोलूंगा कि आप अकाउंट्स पढ़ो, पहले मैं आपको बोलूंगा कि अकाउंट्स पढ़ो, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंश्योरेंस एंड उसके बाद ऑडिटिंग। ये तीनों कंपोनेंट उसी बच्चे को पढ़ना है जो एपीएफसी के लिए टारगेट कर रहा है, इस ऑर्डर में पढ़ना है। बट जो ईओ के लिए टारगेट कर रहा है उसके लिए तो केवल और केवल अकाउंट्स है। ओके, सो एपीएफसी के पेपर में वी आर एक्सपेक्टिंग 5 to 6 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। उसमें भी आप देखोगे कि अकाउंट्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, इंश्योरेंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन और ऑडिटिंग के अंदर भी आपको 1 से 2 मिल सकते हैं। बट जो मेन हर्डल है बच्चों के लिए वो है अकाउंट्स। इंश्योरेंस हो जाएगा, ऑडिटिंग भी हो जाएगा, अकाउंट्स कैसे करें? सो अकाउंट्स के लिए आपको मैं 3 से 4 टॉपिक बता रहा हूं जो अच्छे से करने हैं। सो ये सारे के सारे देखो, आप बोलोगे कि सर आपने 5 टॉपिक बोले बट यहाँ पे 10 चैप्टरों के नाम लिखे। आई विल टेल यू कि मैंने कैसे ब्रेकअप किया है। फर्स्ट कम्स द टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंट्स को बेसिकली से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले कहीं से तो स्टार्ट करोगे। तो जो पहला बेसिक पार्ट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग इज पार्ट 2। तो जो बेसिक है वो आपका इस टॉपिक से ही क्लियर हो पाएगा, तभी मैंने इसको टॉपिक 1 दिया है कि आपको ये दोनों चैप्टर्स या ये दोनों टॉपिक्स टॉपिक 1 के अंदर ही पढ़ने हैं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप बेसिक है, अगर आज मेरे पास बेसिक ही है, मैंने सिर्फ उसको 2 में डिवाइड कर दिया तो आपके लिए क्या होगा, पढ़ना ईजी हो जाएगा। अब जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इसके अंदर आप ये पढ़ोगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हार्डली 1.5 आवर्स का चैप्टर और कुछ नहीं है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे साइंस के न्यूटन के 3 प्रिंसिपल्स है, यहीं पे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे गोइंग कंसर्न क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहां पे आपके बेसिक्स बन जाएगा। एक बार बेसिक्स बन जाएगा तब ठीक रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक 2। टॉपिक 2 इज रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सी अगेन, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं समझाना चाहूंगा कि आपने एक थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम का इफेक्ट भी पढ़ते हो। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर एज वेल। आपके बेसिक्स बनेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में, फिर उसको उसके बेसिस पे इफेक्ट क्या आने वाला है, जर्नल कैसे बनेगी, जर्नल एक टाइप की बुक होती है, उसके अंदर एंट्री कैसे होगी, लेजर कैसे बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो आप यहां सीखोगे। अब रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 में जर्नल पढ़ोगे और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 2 में लेजर पढ़ोगे, तो दोनों है तो एक ही टॉपिक। और अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो जो ट्रायल बैलेंस है वो हार्डली आधे घंटे का चैप्टर है। कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास लेजर बना हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर शफल करना है और कुछ नहीं है। सो इसलिए इसको मैंने नाम दिया है टॉपिक 2 कि अगर आप पहले बेसिक बनाओ, बेसिक से फिर अल्ट्रा बेसिक के ऊपर जाओ। रहना बेसिक पे ही है। यहां पे मैं फिर कह रहा हूं तूफान लेवल का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, देन कम्स टॉपिक 3। टॉपिक 3 में मैंने 2 चैप्टर्स लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेशियोज। ये दोनों वो चैप्टर है जो बेसिक से रिलेट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि बेसिक पे ही 3rd स्टेप है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसे आप अपने पास ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, उसके मीनिंग पढ़ो, उसकी जर्नल एंट्री आप सीखोगे तो ही जाके आपका बेसिक्स बनेगा। सिंपल है कि आपको रहना बेसिक्स के आसपास ही है। रेशियो एनालिसिस एक किसी बिजनेस को अपने को पता लगाना है कि वो अच्छा है, खराब है, उसके पास कितना लोन है, कितना अपना पैसा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए मैं वही कह रहा हूं आपको कि आपको रेशियोज पढ़ना पड़ेगा। रेशियोज में करंट रेशियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेशियो क्या होता है, कैश रेशियो क्या होता है, बहुत बेसिक कर लोगे, इट विल बी गुड टू गो। सो यहीं पे आपको थोड़ा एडवांस लेवल मिल सकता है, बट यहां पे भी आपको रहना इजी लेवल पे ही है। रेशियोज में बहुत मतलब मोर देन 20 रेशियोज है, सब मत पढ़ने बैठ जाना।
जो बेसिक लेवल के, बस उन्हें ही पढ़ो। जैसे करंट रेशियो हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। ना अगर मैं आपकी प्लेस पे होता तो मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं पढ़ता, बिकॉज उसका बहुत ही मतलब, एक तो बोलते हैं ना कि सीए लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं, तो वो बेसिक से बाहर हो जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जो बेसिक 11-12 में पढ़ाते हैं वही पढ़ लो, वही बहुत है बस, ठीक है। देन थोड़ा सा अगर अपना लेवल बढ़ेगा तो अपन आएंगे 3 अलग चैप्टर्स पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स। अब ये तीनों चैप्टर है तो अलग अलग, मैं खुद बोलता हूं, बट जो आपका टॉपिक 4 है वो होगा थोड़ा एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल यानी ये नहीं कह रहा कि तूफान लेवल, इट विल बी बेसिक ओनली, बट ये दोनों चैप्टर से एपीएफसी में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जैसे अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्री में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एपीएफसी में लास्ट ईयर 2015 में आई मीन उन लोगों ने फीफो मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन दिखने में इतना टफ लगता है कि यार ये तो होगा ही नहीं 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर, बट अगर आपको फीफो की टेबल बनाना आती है, देन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड अंडर 45 सेकंड्स। टेक माय वर्ड्स, कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन था और आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते एपीएफसी में, या जितने का भी क्वेश्चन था वो आपको मिल जाते। सो यहाँ पे आपको वो दिमाग लगा के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज और पीपीई, अब जैसे पीपीई में आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है वो पढ़ना चाहिए। सो उस पर फिर क्वेश्चन आ सकता है। डेप्रिसिएशन एक अकाउंट्स का बहुत मोटा कंसेप्ट है, मतलब मोटा यानी कि बहुत बड़ा, ओके। एंड देन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, जब अकाउंट्स बंद हो रहे होते हैं, आपने स्टार्ट करा है तो बंद करना भी सीखना बनता है, ठीक है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये 4 टॉपिक्स, अगर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा जाए तो उसमें ये सब पार्ट्स है। ये अगर आप ईओ के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में। हाँ, बहुत कुछ है बट वो एडवांस लेवल का है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर टॉपिक 5 क्या है, तो टॉपिक 5 आपका हो जाएगा इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग। इंश्योरेंस में देखो, अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी बोला है कि 2 घंटे का काम है, 2 घंटे अच्छे से बैठो, और अगर आपके पास कोर्स है तो कोर्स से पढ़ लो हमारे, अगर नहीं है तो गूगल करो, यूट्यूब करो, 2 घंटे में आप अच्छे से कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो स्ट्रक्चर्ड हो। ऐसा ना हो कि एक चीज़ वहाँ हो एक चीज़ वहाँ हो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हमने जो कोर्स में समझा रखा है उसमें से 2 घंटे का इंश्योरेंस है, वो पढ़ लोगे, मोर देन इनफ है। ऑडिटिंग अगेन माय फ्रेंड एक थोड़ा नया सब्जेक्ट होता है कई लोगों के लिए, बट ये बहुत ईजी है, माइंड यू। अगर आप मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटिंग इंडिया में कौन करता है, हिस्ट्री क्या है, वो सब एक्सपेक्ट ही पढ़ लोगे तो भी ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जाए तो ऑडिटिंग का सबसे कम वेटेज है। पहले आपको अकाउंट्स करना है, फिर आपको इंश्योरेंस करना है, एंड देन ऑडिटिंग पे जाना है। अगर टाइम कम है तो आप ऑडिटिंग का लोड हटा सकते हो, बट अकाउंट्स और इंश्योरेंस तो करके जाना ही जाना है। अकाउंट्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 4 टॉपिक्स तो अच्छे से करने ही है। अब जैसे आप बोलोगे कि सर ये दोनों जो टॉपिक्स है ये अलग अलग चैप्टर्स है, बट कंसेप्ट तो एक ही है ना। आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में जर्नल सीख रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 में लेजर सीख रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 हटा भी दूं तो भी वो रहेगा एक टॉपिक ही। इसलिए मैंने यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स लिए और जो सिलेबस है उसको थोड़ा ईजी कर दिया है। अब कोई समझदार बच्चा होगा तो वो इसका पूरा यूज करेगा और उसको जो अकाउंटिंग का डर है वो निकल जाएगा। बट यहाँ पे रहना बेसिक लेवल पे ही, प्लीज एडवांस लेवल पे मत जाना, बिकॉज दैट विल जस्ट क्रिएट ट्रबल फॉर यू और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सो दैट्स इट माई फ्रेंड, आई होप now you have the clarity and I wish you all the best for your exam. Meet you in the next lecture. चलो टाटा, बाय बाय।